Greetings of the day to you. E-Learning Era by Sonia Paruthi is here with the explanation of the essay The Vindication of Isaac Bickerstaff, which is written by Jonathan Swift. Meaning of vindication refers to the fact that someone said or did was right after other people thought it was wrong. विंडिकेशन का मतलब होता है वो फैक्ट्स जो किसी ने किए हों या फिर कहा हो कि वो सही हैं पर उसको लोगों ने गलत समझा हो. This essay is purported to be written as a defense by Isaac Bickerstaff, who was Richard Steele. The essayist Isaac Bickerstaff was the pseudonym used by the Steele when he was doing some part of his early publishing before he joined up with the Edison on the Tatler and the Spectator. ये जो ऐसे है ये आइजैक बिकरस्टाफ ने बचाव के रूप में लिखा है. आइजैक बिकरस्टाफ एक दूसरा नाम था जो स्टील यूज़ करते थे जब वे अपने अर्ली पब्लिशिंग का काम कर रहे थे एडिसन के टेटलर और स्पेक्टेटर वाले काम को करने से पहले. First published in an octavo pamphlet in 1709, this piece was reprinted in the 1711 and 1721 miscellanies. The style is typical of the style of works with capitals for nouns. ये 1709 में ऑक्टावो पैम्पलेट में सबसे पहले पब्लिश किया गया था. उसके बाद 1711 एंड 1721 में इसे दोबारा से रीप्रिंट किया गया. ये जो स्टाइल है वो बहुत ही टिपिकल सा है. नाउन्स के लिए कैपिटल्स दी गई हैं. The vindication talked about is the unjust treatment meted out to the said Isaac Bickerstaff by Mr. Partridge, who records the yearly almanac. इस vindication में unjust treatment यानी अन्यायपूर्ण व्यवहार के बारे में बात की गई है और इसे मिस्टर पार्ट्रिज ने रिकॉर्ड करके रखा है अपनी ईयरली एल्मनेक में. He had called Bickerstaff a fool and villain. Swift says that he is more worried about the insult to the world of letters rather than himself. He says that he would like to offer a vindication of himself and adds that there are very few men who are willing to own up to their faults and be excused than him. उन्होंने बिकरस्टाफ को एक मूर्ख इंसान और विलन कहा है. स्विफ्ट कहते हैं कि आइजैक वर्ल्ड ऑफ लेटर्स यानी लिटरेचर के फील्ड में अपमानित होने के बारे में ज़्यादा चिंतित हैं ना कि अपनी नज़रों में गिरने की चिंता है उनको. वो वर्ल्ड ऑफ लेटर्स में अपना फेम बचाने के लिए ही वरी करते हैं. बाकी उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है. वे कहते हैं कि वे खुद के लिए एक विवेक प्रदान करना चाहते हैं और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं. The objection from Mr. Partridge himself has been to the predictions Bickerstaff made about Mr. Partridge himself. One prediction was about the death of Mr. Partridge, which was contradicted by Mr. Partridge in an ungentlemanly manner. Mr. Partridge ने बिकरस्टाफ के खिलाफ एक ऑब्जेक्शन उठाया उनकी प्रिडिक्शंस को लेके. उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि पार्ट्रिज की डेथ हो जाएगी जिसे मिस्टर पार्ट्रिज ने अनजेंटलमैनली मैनर में कॉन्ट्रडिक्ट किया. कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना. The author remarks with a touch of humor that not only was the prediction wrong as Mr. Partridge was alive but also that he was alive on 29th of March when he was supposed to be dead, and the speaker Mr. Bickerstaff believes that who are sensible and learned will take part in this controversy. जो ऑथर हैं वो रिमार्क करते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ कि ना कि केवल वो प्रेडिक्शन रॉन्ग थी क्योंकि मिस्टर पार्ट्रिज ज़िंदा हैं बल्कि 29 मार्च को भी वो ज़िंदा थे जिस दिन बिकरस्टाफ ने उनके मरने की तारीख को प्रिडिक्ट किया था. मिस्टर बिकरस्टाफ का मानना है कि जो समझदार हैं और लर्नड हैं वो इस कंट्रोवर्सी को ज़रूर समझेंगे, वो इसमें हिस्सा लेंगे. With a touch of cynical humor, Bickerstaff goes on to explain why he considers Mr. Partridge dead. Mr. Partridge contends that he is able to foretell fortunes and recover stolen goods and
This habit of his is condemned by the parish as it is considered to be brought about by the communication with devil. The author, as Bickerstaff, quibbles on the possibilities that Mr. Partridge did not survive the 29th of March. साइनिकल ह्यूमर यानी निंदक हास्य में बिकरस्टाफ समझाते हैं कि क्यों वो मिस्टर पार्ट्रिज को डेड समझते हैं। मिस्टर पार्ट्रिज का मानना है कि वो फॉर्च्यून बताने और चोरी हुए सामान को बरामद करने में सक्षम है, और ये जो मिस्टर पार्ट्रिज की हैबिट है वो पेरिश यानी चर्च के पास की जगह में रहने वाले की नज़रों में गलत है, क्योंकि ये डेविल से कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है, इसलिए पेरिश इसे गलत मानते हैं। ऑथर एज बिकरस्टाफ ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि सच में मिस्टर पार्ट्रिज 29 ऑफ मार्च को ना बचे हों, वो मर गए हों। Swift adds a very wry analysis about the profession of an almanac maker by predicting minutes as they pass. What really happens is that once the minute wears off, the prediction is also over. When at the end of the year the author's predictions are all verified, Mr. Partridge comes up to refute the prediction about himself and his death. The vindication thus goes on. जो राइटर हैं स्विफ्ट, वो एल्मेनेक मेकर के प्रोफेशन के बारे में एनालिसिस करते हैं। उनका कहना है कि मिनटों की भविष्यवाणी के रूप में एक्चुअली होता क्या है, एक बार जब वो मिनट जिसमें प्रिडिक्शन किया गया हो कि इस टाइम पे प्रिडिक्शन होगा कि वो सच हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाता है तो भविष्यवाणी भी ख़त्म हो जाती है। एट द एंड ऑथर की सब प्रेडिक्शन को वेरीफाई कर लिया गया, पर फिर भी जो मिस्टर पार्ट्रिज है वो बार बार रिफ्यूज़ करते हैं अपनी डेथ की प्रेडिक्शन को लेकर, एंड थस दिस विंडिकेशन गोज़ ऑन।